Now, moving forward is another individual who has made his presence felt in the year-round cultural events at our institute. I would like to invite Roop Chaudhary to share his experiences with us. Hi, am I audible? Yeah. Yes, yes. Okay. Hi, very good evening, everyone. So I had a lot to share with you all actually, but because of the shortage of time, I directly jump into two stories which I wanted to share. ये दोनों stories मेरे इस 2 साल की journey से related है, and I felt as it helped me a lot. It could be useful for many of us in the near future, or might be useful for the future students of ITGN as well. I remember it was 7th of August 2019, maybe somewhere around 8:30 in the evening. My roommate Souvik came up to me and said, तुझे कुछ दिखाना है, but promise me तो hurt नहीं feel करेगा. I was like, अरे चिल्ले यार दिखा. He showed me an Instagram post by confessions_ITGN. It exactly said, Roop, you look like a balloon and you're dumb. Stop walking out and solve Sudoku. I didn't react much in front of him. We used to live on Firpil ground floor, and I went to the washroom, looked at myself into the mirror, and it was clear that I was hurt. But it was not the first time I was being mocked. I already had few earlier experiences of mocking based on my caste, look, physics, etc. I just reminded myself of those and told myself that I will not respond with words, I will respond with actions. I went back to the room and asked him to share me a screenshot of that post. So yes, I think none of my friends in the campus know that I belong from a scheduled caste family, and I wanted to come out today. Being probably the last gate rank holder in MTech CSE 2020 batch, I could never think of being among the top few performers in my class throughout all the 4 semesters. But then there is this story I learned from one of my seniors in a network marketing industry, which has helped me a lot. So एक बार क्या होता है, एक 4-5 मेंढक का ग्रुप होता है जो जंगल से जा रहा होता है एंड अचानक से क्या होता है, बीच में एक बहुत ही गहरा खड्डा आ जाता है एंड वो चारों के चारों उस खड्डे में गिर जाते हैं. अब खड्डा बहुत गहरा था तो ये लोग बहुत चीखने चिल्लाने लगे एंड उछल कूद करके बाहर आने की कोशिश करने लगे. इतने में क्या हुआ, जो शोर शराबा हो रहा था उसमें से आसपास में जितने भी मेंढक थे सारे उस खड्डे के पास आ गए एंड उन्होंने उस सिचुएशन को थोड़ी देर ऑब्जर्व किया. ऊपर से उन चारों को बोलने लगे, भाई खड्डा बहुत गहरा है, ऐसे उछल कूद करके बाहर आना नामुमकिन है, तो अच्छा ये होगा कि तुम लोग उछल कूद करना बंद करो एंड अपनी एनर्जी प्रिजर्व करो, तो शायद थोड़ी ज्यादा देर तक बच सकते हो. अब ये लोग ऊपर से ऐसा बोलते गए एंड धीरे धीरे 4 में से 3 मेंढक ने हार मान लिया एंड चुपचाप बैठ गए. अब जो चौथा मेंढक था उसको आप सबने उंगली पॉइंट करके बोलना शुरू किया कि यार बेवकूफ तो पागल है क्या, इन तीनों से नहीं हो पाए तो तेरे से कैसे होगा, बेकार कोशिश कर रहा है, तू सबसे पहले मर जाएगा. बट वो जो चौथा मेंढक था वो कोशिश करते गया, उसको जितनी जोर से ऊपर से लोग बोलते गए वो उतनी जोर से और कोशिश करता गया एंड धीरे धीरे करते 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 वो एक मैजिक की तरह बाहर आ गया. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस चौथी मेंढक में ऐसा अलग क्या था. एक्चुअली वो बहरा था तो उसको सुनाई नहीं देता था. तो जब सब लोग उसको पॉइंट करके बोल रहे थे कि तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, तू सबसे पहले मरेगा, कोशिश करना छोड़ दे, उसको लग रहा था सब उसी को पॉइंट करके बोल रहे, तेरे से ही होगा, तू ही कर सकता है, बाकी और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ तेरे में वो बात है. एंड दैट्स इट. लाइफ में जब भी क्रिटिसिज्म मिले उदास मत होना उससे, बस ये सोचना कि उस क्रिटिसिज्म को तुम अपने फेवर में कैसे यूज कर सकते हो. एंड यार सिर्फ वो स्क्रीनशॉट नहीं, एक और पागलपंती किया था मैंने, जस्ट लाइक बाकी लड़कों के साथ नए कैंपस में आके जो होता है. I also developed feelings for the first girl and got friend zoned, got rejected. Then there was a second rejection and it kept happening for a while. And not only on this kind of matters, I felt being underestimated and rejected on by many of my friends on few other occasions as well. So मैंने क्या किया, अपनी फोन की जो नोट था उसमें एक लिस्ट बनाया एंड इस सबके मैं नाम लिखते गया. तो क्या होता था, मुझे जब भी जिम में हो या चाहे लाइब्रेरी में हो या चाहे डांस में हो, कभी भी अगर मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत मुश्किल है, ये मेरे से नहीं होने वाला, तो मैं उस स्क्रीनशॉट को देखता था एंड उस लिस्ट को देखता था एंड खोल के मैं खुद को बोलता था कि दिस आर द सेट ऑफ पीपल हु थॉट यू आर नॉट गुड एनफ. इट माइट नॉट बी ट्रू इन एक्चुअल, बट मुझे क्या फर्क पड़ता था, आई जस्ट हैड टू यूज इट ऑन माय फेवर. एंड इसमें से बहुत लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे, तो ये जब मेरे सामने से जाते थे ना, इट यूज्ड टू वर्क एज अ फ्यूल टू माय विल पावर. आई ऑलवेज केप्ट टेलिंग माय सेल्फ दैट कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा जगह होगा जहाँ पे मैं खुद को और इम्प्रूव कर सकता हूँ. एंड आई केप्ट पुशिंग माई सेल्फ. एज दे से, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स.
अगर मैं लास्ट रैंक होल्डर होके ये स्मॉल अचीवमेंट्स पा सकता हूँ, तो आई एम श्योर whoever you are listening to it right now, you can achieve bigger things in your field more easily. You just need to make your why strong enough. How will find its way to you. Coming to the second story, so this one helped me a lot when I lead the fashion show group. In fact, I remember I shared this story in the first group meeting. So when we started, I remember I didn't have much prior knowledge about the costume designing and all, and the team was also not very confident at the initial days. Most of them were from MSCs and they had net exam after few days. So शुरू में वो लोग पहले उतना time नहीं दे पाते थे, and I couldn't blame them for it because वो लोग पढ़ने के लिए mainly यहाँ पे आए, right? So I felt very frustrated and felt like giving up at very phases. But there is this story which I kept telling them and me as well. So suppose आप फिरपिल में रहते हो and फिरपिल के किसी रूम में बैठे हो, and जैसे मेरा फेवरेट स्पॉट है लाल मिरर का ग्राउंड फ्लोर वाला एरिया, तो आप रूम में बैठ के अगर सोच रहे हो कि काश मैं भी उस जगह पे होता और आपको उस जगह पे बहुत क्रेविंग हो रहा है, तो आप अगर रूम में बैठ के ऐसे सोचते रह जाओगे तो क्या आप कभी वहां पे पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे, राइट? आपके सामने क्या होता है? आपके सामने आपके रूम की डोर होता है। सो आपको अपने डोर के बाहर जाना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। फिर आपको शायद फिरपिल का लॉबी दिखेगा, फिर आपको लॉबी तक जाना होगा, फिर शायद पीसी दिखेगा, फिर वहां से बास्केटबॉल कोर्ट, फिर सोलर कारपोर्ट, एंड धीरे धीरे आप लाल मीनार तक जा सकते हो। सो इट्स जस्ट लाइक द सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोलकाता से अहमदाबाद ऑन रोड ट्रैवल करना है, एंड अगर आप ये सोच के बैठे रह जाओगे कि आप तभी चलोगे जब ऑन द रोड जितने भी सिग्नल पोस्ट है सारे के साथ एक साथ ग्रीन होगा, तो शायद ही ऐसा कोई सिचुएशन आएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, जो पहला सिग्नल पोस्ट है अगर वो ग्रीन है तो आप उसको क्रॉस करो, एंड फिर दूसरा जो सिग्नल पोस्ट है उसको देखो वो ग्रीन है कि रेड है। अगर ग्रीन है तो आप उसको क्रॉस कर जाओ, अगर रेड है तो आप वेट करो, या फिर आप सोचो कि क्या कोई और दूसरे रास्ता है जहां से मैं इजीली वहां तक पहुंच सकता हूँ। सो दैट्स व्हाट वी केप्ट डूइंग। हमने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा, एंड वी ऑल नो द रिजल्ट्स। सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, लाइफ में जब आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स गोल लेते हो, तो आपको हमेशा से वो पाथ पता नहीं होता है। तो आप अगर ये सोच के बैठ जाओगे कि मुझे ये सोलर कारपोर्ट वाली पाथ से ही जाना है, तो हो सकता है आप उसके एंट्री पॉइंट पे जाके देखोगे कि वो पाथ अवेलेबल नहीं है, मतलब कुछ हो गया या फिर वहां से सांप चला गया, जैसे कभी कभी होता है, तो उसमें से आप नहीं जा सकते। तो आपको घूम के कट ब्लॉक 6 की तरफ से जाने पड़ सकता है। सो ऑलवेज कीप योर माइंड ओपन। ऐसा मत सोचना कि मुझे इस काम को अचीव करना है तो ये जो गोल है, ये जो पाथ है, ये पाथ मिलेगा तभी मैं मूव करूंगा। यू शुड ऑलवेज थिंक कि इस सिचुएशन में कौन सी स्टेप लेना पॉसिबल है मेरे लिए, एंड यू शुड गो ऑन दैट। So as they say, today you could keep doing what is possible, and slowly with time you will achieve what is impossible. So that's all from my side. Thanks to all of you who are there with me in the tough phases, and special regards to the people who are there in the list. You have no idea how much you have contributed in my small achievements. Over to you. Thank you, Roop Bhaiya, for those amazing stories. They were indeed very inspiring.